السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میری ابھی ایک بات ہوئی ہے، اہل حدیث کا مناظر ہے جس کا نام فائق عادل ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا چیلا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہابی لوگ پوری طرح سے دلیل لیتے نہیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں آپ تک زیادہ سے زیادہ دلیل پہنچایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے کام آ سکے۔ تو آپ سن لیں پہلے اس کا آڈیو، اس کے بعد میں اور بھی بہت سارے دلیل دیتا ہوں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور آپ کسی سے بحث کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی خان ہاں، فائق عادل صاحب۔ جی بولیے صاحب۔ ہاں، وہ بات کرنے والے تھے نا کچھ۔ جی ہاں بولیے آپ۔ میرا دعویٰ بول دیتا ہوں پہلے میں۔ ہاں میرا دعویٰ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، نہ اس کے سوا کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اچھا، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اچھا، نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے، کوئی اللہ کے سوا۔ اب سنو۔ ہاں، تو یہ پوری طرح سے بتا دیں کہ یہ ذاتی طور پر کہ عطائی طور پر؟ ذاتی طور پر۔ تو ذاتی طور پر ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے ذاتی طور پر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ سنیے آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں تو وہ غریب نواز بھی ہے۔ ہاں تو اللہ کی عطا سے ہیں، وہ تو ہم مانتے ہیں اللہ کی عطا سے نہیں فرمایا، یعنی آپ نے فرمایا تھا وہ جو ہر چیز عطا کر سکتے ہیں، ہر چیز عطا کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہر چیز ہے نا۔ تو اولاد عطا کر سکتے ہیں، سب دے سکتے ہیں جو چاہو۔ اولاد بھی۔ ہاں اچھا، یعنی کہ حقیقی معبود کے علاوہ بھی اللہ نے اختیار دیا ان کو کہ وہ اولاد دے سکتے ہیں کسی کو بھی۔ ہاں اچھا، لڑکا اور لڑکی دے سکتے ہیں۔ ارے یار، اولاد میں سب آ گیا نا۔ ارے وضاحت تو لے لو تھوڑی سی۔ اب اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد نہیں دے سکتے اولیاء انبیاء تو اس پر ایک آیت پڑھ دیجئے، پھر اس کے بعد میں 50 آیت پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس مدعے کی ذمہ ہوتی ہے دلیل، تو جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس کی ذمہ ہوتی ہے۔ کہ تمہارا دعویٰ نہیں ہے، خلاف اصل کا انکار۔ چلو یہ اصول پڑھو، کہاں لکھا ہوا ہے پورا؟ سنو ہاں ہاں بولو۔ لیکن آپ کے لیے انکار کریں گے مدعے کی ذمہ دلیل نہیں ہوتی۔ ارے مدعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے مدعی تو آپ ہو۔ آپ مدعی نہیں ہو؟ نہیں، ہم مدعی تھوڑی، ہم انکاری ہے۔ پڑھو کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ پہلے آپ اس کا انکار تو کریں گے، مدعی کی ذمہ دلیل نہیں ہوتی۔ مدعی کے ذمے دلیل ہوتی ہے، پورا اصول پڑھو جو مدعی کے تعلق سے جو اصول محدثین نے بیان کیا ہے اس کو اصول پڑھو۔ نہیں، اللہ کے رسول نے بیان کرا ہے، محدثین کا بات کر رہا ہوں۔ چلو اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا بتاؤ؟ الحمدللہ ہم بتائیں گے، پھر آپ انکار تو کرو کہ ہم نے فرمایا۔ ارے بتاؤ گے؟ ارے آپ منازع کرنے آ رہا ہے، پھر انکار تو کرو۔ کیا انکار کروں؟ کہ مدعی کی ذمہ دلیل نہیں ہے۔ ارے میں تو مان رہا ہوں نا مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، لیکن اب کون سے مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے؟ ارے انکاری کی ذمہ، ارے کون سے مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے؟ جو کہہ رہا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہوتا ہے۔ مطلب تمہارا دعویٰ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ کوئی بھی امتی یا کوئی بھی ولی اللہ اولاد دے دے کسی انسان کو۔ تو یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دعویٰ تھوڑی نا انکار ہے نا۔ تو خلاف اصل کا انکار ہی کرنے والا۔ اچھا، البینہ تو سن، ارے سن لے، البینہ تو علی المدعی ولا یمین علی من انکر، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس مدعی کے ذمہ دلیل ہے کہ جو خلاف اصل کا انکار کرتا ہو، اور تم خلاف اصل کا انکار کر رہے ہو، تم دلیل تمہارے ذمہ ہے۔ ارے انکار اب ہنس رہے ہو تو خلاف اصل کا انکار کرنے والا، ہم نے مان لیا یہ اصل ہے ہمارے لیے، اب تم اس کا انکار کر رہے ہو، دلیل تمہارے ذمہ ہے۔ ارے دلیل ہماری ذمہ تھوڑی، الحمدللہ دلیل مدعی تو مدعی تو تم ہو گئے، خلاف اصل کا انکار کرنے والا مدعی ہوتا۔ ہم کہہ رہے ہیں حقیقی اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دیتا، ہم ہاں تو یہ دعویٰ ہو گیا نا۔ ہاں الحمدللہ یہ دعویٰ ہو گیا ہمارا۔ ہاں، خلاف اصل کا تمہارا دعویٰ ہے۔ ہمارا اس پہ ہم دلیل بھی دیں گے الحمدللہ، یہ مدعی ہم اس جگہ پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ولی اللہ بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ اولاد موت دے سکتے ہیں، بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، سب دے سکتے ہیں۔ تو وہی دعویٰ ہے نا آپ کا۔ ہاں تو میرا دعویٰ، تمہارا بھی تو دعویٰ ہے کہ تمہارا نہیں دعویٰ ہے؟ ہمارا انکار ہے اس سے۔ کیا تو انکار کی دلیل کوئی ہے؟ انکار کی تو قسم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عطائی طور پر ہمارا دعویٰ ہے اور وہ میں دلیل میں پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی دیو۔ ہاں اولاد دیو کسی اب سنو یار، ارے بات تو کر لو میرے بھائی۔ ہاں دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم صاحب قبر پہ جائیں گے اور کہیں گے ارے یار،
अरे यार मेरा दावा है कि अल्लाह मुर्दा का दावा जिंदा का वली अल्लाह का है, मुर्दे वली अल्लाह का है। इसमें जिंदे पर भी दे सकते हैं और इंतकाल शुदा भी दे सकते हैं। चलो ठीक है, चलो वाज़ है, चलो ठीक है, बताइए। सुनो। अरे यार खामोश होगा पहले। मैं तो सवाल तो सुन लो पहले। हाँ तो खामोश होऊंगा। हाँ बोलो। इंतकाल जिसका हो गया हो वली अल्लाह का, उस पर दलील दो कि वो औलाद दे देगा। हाँ बोल चुके। चलो जी हाँ बोल चुका। ये उसूल कहाँ पर मौजूद है कुरान में? अरे भाई आपने कहा कि इंतकाल हो गया हो या जिंदा। अब ये तुम्हारा दावा, ये तुम्हारा दावा हो गया ना। अरे वजाहत में आपने बोला ना आपका दावा हो गया। नहीं तो क्या दावा? क्या दावा? दावा ये जिंदा जो वली है वो भी दे सकते हो, जो इंतकाल कर हाँ अब सुनो, दावा है ना आपका। अब सुनो। अरे खामोशी से सुनो, मैं बता रहा हूँ। अब इंतकाल वाले का दो दलील। अरे सुनो पहले। अरे जो सवाल कर लिया वो दलील दो ना। हाँ अरे तो सुनेगा पहले, बोलने देगा मुझे। आप बोलो ना। हाँ सूरत सूरा जो है आयत नंबर 49। कौन सूरत? सूरत सूरा। अच्छा शूरा, जी जी ठीक है ना, आयत नंबर 49। उसका तर्जुमा है अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेटा अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है। कुरान में है ये जी। और सूरह मरियम आयत नंबर 19 हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुमको पाकीज़ा बेटा अता करूँ। अच्छा चलो हो गया। पता क्या चला? अल्लाह के अलावा भी अल्लाह की अता से भी जो है फरिश्ते बेटा भी देते हैं। ठीक है ना? इंतकाल की बात ही दो दलील। अब सुनो, मतलब फरिश्ते दे सकते हैं ना बेटा, मान लिए तुम। अरे सुनो, अरे यार इंतकाल का भी दे रहा हूँ, खामोश हो जाओ। पहले इंतकाल का दो। अरे यार मैं दे रहा हूँ, पहले फरिश्तों का तो मान लो ना। फरिश्ते अरे खराब हो जाएगी। तो खराब कैसे होगी? पहले इसको तो मान लो। एक मान लिए क्या? मतलब फरिश्ते दे सकते हैं ना बेटा। अरे अरे भाई जब भी तो आप बात खराब करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ऑडियो नहीं बने। मैं पूछ रहा हूँ कि फरिश्ते बेटा दे सकते हैं ना? आप ऑडियो खराब करना चाह रहे हैं। जो खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फरिश्ते बेटा दे सकते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे बहस करूंगा आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूछ रहा हूँ, इसको मान लिए ना तुम कि अल्लाह के अलावा फरिश्ते तो बेटा दे सकते हैं ना? मैं इसे बहस करूंगा साहब, मैं इस पर बहस करूंगा आपसे। बहस करिए, करूंगा नहीं, करिए इस पर बहस। पहले इंतकाल की दलील दीजिए आप। मैं बता रहा हूँ इंतकाल का माना क्या है। कि जो बरज़खी जिंदगी जी रहे हैं। इंतकाल का ये माना किया है किसी ने? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कुरान है कि दुनिया चला गया वो आलम बरज़ख में रहेगा। बरज़ख में तो फरिश्ते कहाँ हैं? अरे मैं अभी मरने वाले पे दलील। फरिश्ते कहाँ हैं? आलम बरज़ख में है कि नहीं है? कौन फरिश्ते? फरिश्ते बरज़ख में? हाँ फरिश्ते आलम बरज़ख में है या नहीं है? अच्छा जीवा इंतकाल हो गया। मैं पूछ रहा हूँ आलिम बरज़ख में है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ बरज़ख में है कि नहीं है? अरे वली अल्लाह है क्या फरिश्ते? मैं पूछ रहा हूँ बरज़ख में है या नहीं है? अरे भाई वली अल्लाह है क्या फरिश्ते? अब सुनो, बरज़ख में नहीं है तो मतलब बरज़ख में मांगना बेटा बेटी मांगना जो है बरज़ख में, यह तुम्हारे नजदीक शिर्क है। तो बरज़ख में नहीं है तो मांग सकते हैं ना फरिश्तों से बेटा बेटी। अरे मेरे भाई जो मेरा सवाल। अरे तुम कायल हुआ। अरे मैं दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। इसको तो तुम मान गए ना कि अल्लाह के अलावा फरिश्ते बेटा देते हैं। पहले जवाब दो। पहले मैं पूछ रहा हूँ, उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले एक तो मान लो कुरान की बात है। सुनो आपका सेकंड सवाल है, सवाल पहला मेरा है। सेकंड नहीं, मैं पहले इसको मानो। अरे अली भाई आपका। अरे पहले इसको मानो यार। अरे तो भाग रहे तुम यार। और भाग नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ इसको पहले मानो कुरान की शायद को। मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, पहले इसको मानो। अब तो पता चल रहा है फरिश्तों से बेटा बेटी मांगने के कायल हो गए ना तुम। अरे पहला सवाल मेरा है। पहला सवाल तो तुम्हारा क्या है, दूसरा तो छोड़िए। अल्लाह बेटा। अब सुनो सुनो यार, सुनो सूरत सजदा सुनो यार। अरे मैं सुनो पहले मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या। अरे सुन लो यार, सुन लो पहले, सुनो। देखो ये बोलने नहीं देगा, ये बोलने नहीं दे, इसकी औकात नहीं। सूरत जुमर पढ़ो आयत नंबर 42। हाँ चलो आयत नंबर सूरत जुमर आयत नंबर 42। अल्लाह फौत देता है जानों को। क्या करता है अल्लाह ताला? क्या करता है? फौत देता है जानों को। सूरत सजदा आयत नंबर 11 में है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि तुम्हें
मौत का फरिश्ता मौत देता है। यहाँ अल्लाह ताला कहता है मैं दे रहा हूँ मौत, और यहाँ कह रहा है अल्लाह ताला कि फरिश्ता मौत भी देता है। तो मान चुके कि फरिश्ते भी मौत देते हैं। हमारा सवाल नहीं है कि आप देखो एक भी नहीं मानेगा, ये कुछ नहीं मानेगा तू। अब सुनो, अब सुनो, सुनो, अरे वो तो ठीक है। अब सुनो, अरे मैं ले दलील, वो भी ले बाबा, तू दलील ले। अब सुनो, मुर्दे से दुआ करने से वो औलाद दे देगा। पहली बात, मुर्दा है ही कौन? भाई जगह से फरमाइए। ईमान वालों को कुरान ने कहीं मुर्दा कहा है? पूरे कुरान में अल्लाह ने सारी कहा, मैंने कहा अरे तो मौत मरने के बाद मुर्दा हो जाता है, नहीं हो फरिश्ता, मरने के बाद मुर्दा हो जाता है। तो क्या होता है? क्या होता है? पलट के सवाल पूछोगे, जवाब दोगे इसका। अरे दफनाते किसको है? मैं पूछ रहा हूँ दफनाते किसको है? जो इंतकाल कर जाता है। दफनाते किसको? जो इंतकाल कर जाता है, वो मरता नहीं है। मैं पूछ रहा नहीं, वो जिंदा है। अच्छा जिंदा को दफनाते? जिंदा होता है, अल्लाह ताला उसे जिंदा कर देता है। हाँ, फिर कब्र में सवाल। अब सुनो सुनो, तुम तो ये बताओ, सुनो, घूमे क्या जिंदा को दफनाने को घूमे क्या? ये बताओ जिंदगी की कितनी किस्में हैं? जिंदगी का कितनी तरह की? अभी तुमने माना है कि बरज़ख की भी जिंदगी है, और ये भी दुनियावी जिंदगी है। जिंदगी दो किस्म की है। अरे जिंदगी दो किस्म की है कि नहीं है? मुझे पहले बताओ, बरज़खी जिंदगी है कि नहीं जिंदगी? अरे बात ही, अब देखो फंस गया। अब बताओ, जो बरज़खी जिंदगी है, तो फिर जब जिंदगी है तो उसे मुर्दा क्यों कह रहे हो? जिंदगी हुई ना। मेरे पहले सवाल का जवाब औकात नहीं है, रख दे फोन, मैं तबसरा कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि उसने कहा है कि अल्लाह के सिवा ना कोई मालिक है और ना कोई मददगार, तो पहले मैं मालिक की दलील देता हूँ, फिर मददगार की भी दलील देता हूँ। ये सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 105 है। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। और बेशक हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। वारिस कौन है? जो मालिक होता है वो वारिस होता है। अल्लाह की अता से जो नेक सालहीन बंदे हैं वो इसके वारिस हैं। ठीक है। अब सिर्फ ज़मीन के ही नहीं बल्कि जन्नत के भी वारिस हैं। ये सूरह ज़ुखरफ़ है, आयत नंबर 72। वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमुहा बिमा कुंतुम तामलून। और ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस किए गए। ठीक है ना। तो जो नेक बंदे हैं, जो नेक अमल करते हैं, वो जन्नत में जब जाएंगे तो वो जन्नत के भी वारिस हैं। और ये कहता है, वारिस किसे कहते हैं? जो मालिक हो जाता है, उसका अपना हो जाता है, वही तो वारिस होता है। जिसका अपना कोई चीज़ हो जाए, अल्लाह ताला उसे अता कर दे, वो चीज़ उसका वो मालिक हो जाता है, वही वारिस हो जाता है। ठीक है। अब इसने कहा कि और मौला कोई नहीं है। ये सूरह तहरीम की आयत नंबर 2 है। कद फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों को खोलने के वास्ते हुक्म मुकर्रर किया है। अल्लाह ही तुम्हारा मौला है। अब लफ्ज़ ही से ये लोग इनकार कर देते हैं कि अब कोई और मौला नहीं है, जबकि सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 देखिए। सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्नल्लाहु हुआ मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहिल मोमिनीन वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर। कि अल्लाह भी तुम्हारा मौला है, जिब्रील भी तुम्हारे मौला है, नेक सालेह मोमिनीन भी, और मलाइका भी तुम्हारे मौला है। तो याद रहे कि हम ज़ाती और अताई का फ़र्क करते हैं। अल्लाह ताला जो मौला है वो ज़ाती एतबार से है, और जो बंदे हैं वो अल्लाह की अता से मौला है। मौला का माना मददगार भी होता है, यानी वो मददगार हैं, अल्लाह भी मददगार है।
ठीक है। तो लफ्ज़ ही से अताई की इनकार नहीं होती है, समझ रहे हैं। और लफ्ज़ ही से अगर अताई का इनकार होता तो साफ़ तौर पर हमने सूरह तहरीम की आयत नंबर 2 में बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, ठीक है ना। लेकिन सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी कह रहा है कि फ़रिश्ते भी मौला हैं, जिब्रील भी मौला है और नेक साले मोमिन भी मौला हैं, ठीक है। अब ये देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 107, इससे भी ये लोग इनकार करते हैं। इसका तर्जुमा है, क्या तू नहीं जानता आसमानों और ज़मीन की सल्तनत सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई कारसाज और मददगार नहीं। तो याद रहे ये ज़ाती तौर पर है कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई मददगार कारसाज नहीं है और ज़मीन आसमान का अल्लाह ताला मालिक है। तो ये ज़ाती तौर पर है। और हम लोग अताई तौर पर मानते हैं, तो अताई की इनको नफ़ी ऐसी आयत पेश करनी चाहिए कि अताई की नफ़ी करे, यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वो ताकत नहीं दी, नेक साले मोमिन मोमिनात को ताकत नहीं दी कि वो किसी चीज़ के मालिक हों, ठीक है ना। ऐसी आयत पेश करनी चाहिए, तो वो आयत ये लोग पेश नहीं करते हैं और कौम को धोखा देते हैं और ज़ाती अताई का फ़र्क नहीं करते हैं, जबकि ये चीज़ मानते भी हैं वो लोग कि वो भी इस दुनिया में किसी न किसी चीज़ के मालिक है। हर कोई है, अल्लाह ताला ने अता किया है, किसी को मालो दौलत से नवाजा है, वो किसी के पास घर मकान है तो क्या वो अपने घर मकान का मालिक नहीं है? मालिक है, बिल्कुल, ठीक है। इसने एक बात और कही कि कोई वली भी नहीं है और कोई मददगार नहीं है, जबकि ये आप सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55 देखेंगे, इसमें साफ तौर पर है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतुज़्ज़काता वहुम राकिऊन। तुम्हारा वली तो सिर्फ़ अल्लाह और उसका रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो पता चला वली का माना जो है वो दोस्त भी होता है, मददगार भी होता है। याद रहे कि दोस्त वही होता है जो मददगार होता है, ठीक है ना। तो इससे भी साबित हुआ कि वली भी हैं, मददगार भी हैं और मौला भी हैं। सारा चीज़ इसने जो इनकार किया है उस सारी चीज़ का मैं दलील दे देता हूँ। बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं इस पर, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैं दे दूँगा, आप लोग सुन लें, देख लें और उसको नोट कर लें। मैं कुरान से ही सारी दलीलें दूँगा, ठीक है। बस ये है कि ज़ाती और अताई का हम फ़र्क करते हैं, मगर ये लोग नहीं फ़र्क करते हैं। लेकिन जब ये लोग ज़ाती और अताई का फ़र्क नहीं करते हैं तो फिर अगर ये लोग अपने घर के मालिक जो बने बैठे हैं, तो क्या ये इनका घर द्वार और जो जायदाद है वो इसके खुद अपने मालिक हैं, या क्या इनका वो खुद का है या अल्लाह ताला ने अता किया, अताई तौर पर मालिक है। तो जो उसूल बनाएंगे उसी उसूल को ये लोग तोड़ते भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कौम को गुमराह करना है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 56 है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना वली बनाएगा तो वो अल्लाह की जमात में शामिल हो जाएगा। तो अल्लाह की जमात में शामिल होने के लिए जो नेक साले मोमिन हैं उनको अपना वली बनाना पड़ेगा अल्लाह की जमात में शामिल होने के लिए। यानी अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहा है कि लोगों को मददगार बनाओ, ठीक है, लोगों को मददगार बनाओ। जो नेक साले बंदे हैं उनको मददगार बनाओ, और यही कुरान में मौजूद है, ठीक है, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीना अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। कि ऐ ईमान वालो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना वली मत बनाओ, अपना मददगार मत बनाओ। ऐ ईमान वालो, मोमिनों को छोड़कर, यानी मोमिनों को मत छोड़ो, मोमिनों को पकड़ो, मोमिनों को अपना वली बनाओ। मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना वली मत बनाओ।
यानी मोमिनों को बनाओ, काफिरों को मत बनाओ। ये कुरान में तालीम दी जा रही है, मगर ये कुरान और हदीस को पसे पुस्त डालकर अपने मुल्लाओं की अंधी तकलीद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। ये लोग मोमिनों से दूर करते हैं, और जो मज़ारात औलिया हैं, अम्बिया हैं, उनसे ये लोग दूर करते हैं। उनसे जो है उम्मीद लोगों का चाहते हैं कि उनका जो मोमिनीन हैं उनका उम्मीद जो है कब्र वालों से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, कब्र वालों से कोई उम्मीद ना रह जाए। जबकि कुरान में मौजूद है कि उम्मीद रखना चाहिए। जो मज़ारात औलिया हैं, ठीक है, या अम्बिया हैं, इन सब से जो है उम्मीद रखना चाहिए। साफ़ तौर पर कुरान में मौजूद है सूरतुल मुम्तहना आयत नंबर 13 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम क़द यइसू मिनल आखिरती कमा यइसल कुफ़ारु मिन असहाबिल कुबूर। साफ तौर पर है, ऐ ईमान वालो, उस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पर अल्लाह गज़बनाक हुआ है, जो आखिरत से इस तरह मायूस हैं जैसे कुफ़ार अहले कुबूर से नाउम्मीद हैं। तो कुफ़ार जो होते हैं वो अहले कुबूर से नाउम्मीद होते हैं। ये वहाबी देवबंदी नाउम्मीद हैं या नहीं है? तो पता चला जो उम्मीद रखता है कब्र वालों से हैं वो काफिरों में से नहीं है, लेकिन जो नाउम्मीद हो जाता है वो काफिरों में से है। तो वहाबी नाउम्मीद है कब्र वालों से, और ये लोग कहते हैं कब्र वालों से मांगोगे, उम्मीद रखोगे तो मुशरिक हो जाओगे। ये कुरान की आयत का बिल्कुल इनकार कर रहे हैं वो लोग, इसके बरखिलाफ़ तालीम दे रहे हैं। यानी कुरान में कुछ और है और बता कुछ और रहे हैं। ये जाहिल हैं, समझ रहे हैं? ये कुरान को कहते हैं कि उसका पूरा सियाक़ो सबाक बिगाड़ कर आवाम के सामने पेश करते हैं, पूरा आवाम को काफिर बना रहे हैं। ये बिल्कुल सारा तरीका जो है कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ ही। मैं हदीस अगर पेश करूं तो बहुत बड़ी ऑडियो हो जाएगी, 2-4 घंटे की हो जाएगी। मैं सिर्फ कुरान से दलील दे रहा हूं, ठीक है। ये वहाबी देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह ताला ही सिर्फ मददगार है और कोई नहीं है, बल्कि नेक साले मोमिन कहते हैं हम अल्लाह के मददगार हैं। यानी हम जो मददगार हैं ये हम अल्लाह के हैं। अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। ये सूरह सफ़ आयत नंबर 14, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाहि कमा क़ाला ईसा इब्नु मरियम लिल हवारियीना मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल, ठीक है। इसमें साफ़ तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के मददगार बन जाओ। यानी तुम नेक अमल करो, अल्लाह ताला वो ताकत तुम्हें दे देगा, तुम अल्लाह के हो जाओगे। अल्लाह ताला के मददगार बनो कि अल्लाह ताला तुमसे जो काम करवाए तुम मदद करो। यहाँ अल्लाह का मदद करो नहीं है, मतलब अल्लाह के मददगार बन जाओ। यानी जिस काम को तुम्हें हुक्म दे अल्लाह ताला उसकी मदद करो। और मदद करना दीन की मदद करने के बराबर है। किसी मुसलमान का मदद करना ये अच्छा काम है, ये दीन का काम है, ये दीन का मदद है, समझ रहे हैं। जैसे बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, ठीक है ना। तो जिस तरह ईसा इब्ने मरियम ने अपने हवारियों से को कहा, कौन है जो राह खुदा में मेरा मददगार बने, राह खुदा में मेरा मददगार बने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं राह खुदा में क्या करे, मेरा मददगार बने। तो उनके हवारियों ने क्या कहा, ठीक है ना। हवारियों ने कहा हम अल्लाह के मददगार हैं, यानी हम जो मददगार हैं ये हम अल्लाह के हैं, ठीक है ना। कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, वो समझते हैं कि ये अल्लाह की मदद कर रहे हैं। या अल्लाह की मदद करने की ज़रूरत नहीं किसी को, कोई अल्लाह की मदद नहीं कर सकता।
سمجھ گئے؟ اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، جو صحابی ہیں، وہ مددگار ہیں اللہ کے، یعنی یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح سے ہے، اب یہ لوگ کہتے ہیں کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مددگار ہیں۔ اب یہ لوگ ایک اصول لاتے ہیں کہ انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتے، یا انتقال کے بعد ان سے مدد نہیں طلب کیا جا سکتا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ میں ذکر ہے، جیسے کہ ہم نے آیت پیش کر دیا تھا کہ جو کافر ہے وہ قبر والوں سے مایوس ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا انتقال کے بعد بھی قبر والوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے اپوزٹ ان کا یہ اصول جو بنا رہے ہیں، یہ اصول ہی غلط ہے ان کا، کہ انتقال کے بعد مدد نہیں مانگ سکتے۔ ابھی میں اور بھی آیتیں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس آیت کو پیش کر کے، یہ سورہ ہے، آیت نمبر 49، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ اس سے مطلب نکالتے ہیں کہ اب اور کوئی نہیں عطا کر سکتا ہے۔ یاد رہیے ذاتی اور عطائی کا فرق ہم نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے بندے میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہہ دے کہ جاؤ فلاں کو یہ چیز دے دو تو وہ لوگ دے دیں گے، یہ طاقت دے رکھی ہے۔ اور یہی آپ کو ملے گا سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم لوگ فرق کرتے ہیں ذاتی اور عطائی کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں یہ آیت موجود ہے، قالا انما انا رسول ربکی لأہب لکی غلاما زکیہ، اس نے کہا میں تو بس آپ کے رب کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت انہیں دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ ان کو بیٹا دے دو، تو وہ آئے اور انہوں نے بیٹا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے اپنے بندوں کو۔ اب ایک بات ہے کہ اولیاء انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے، ان کو ولی بھی بناؤ ثابت ہو چکا ہے، وہ مولا بھی ہیں ثابت ہو چکا ہے، ساری چیز ہے۔ اب ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اولیاء انبیاء کون ہیں؟ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ میں سے ہیں، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ میں فلاں کام کروں گا تو اللہ مجھ سے یہ راضی ہو جائے گا، میں کسی کو کچھ عطا کر دوں گا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اب یہ بات ذہن میں بٹھا لینا چاہیے آدمی کو کہ بندے کو اس لائق بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اولیاء انبیاء اس کی مدد کریں، پرہیزگار بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے، نمازی، ہر ایک چیز میں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو جب بندہ نیک ہوگا تو اللہ بھی مدد کرے گا، اولیاء بھی مدد کریں گے اللہ کی عطا سے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو وہ مدد مانگتا رہے، اس کے پیٹ میں درد ہوگا تو وہ درد نہیں ٹھیک ہوئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اللہ بھی نہیں ٹھیک کرے گا، وہ مدد مانگتا رہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں، اگر اولیاء مدد کرتے ہیں تو کہیے کہ ہمارا فلاں کام کر دیں، ہمارا فلاں کام کرتے ہیں۔ تو ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ تو اللہ پر تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا، تو آپ اللہ سے کہیے کہ فلاں چیز کر دیں۔ تو اور یہ ڈیمانڈ کرنا جو ہے یہ کفاروں کا طریقہ ہے، کہ جب ایمان نہیں لاتے تھے کفار تو انبیاء سے تمام چیزوں کا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں یہ کروا کے دکھاؤ تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ یہ کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ ڈیمانڈ کو مطلب اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ کوئی کسی سے ڈیمانڈ کرے، اولیاء سے، انبیاء سے، اللہ سے، کسی سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ہم نے بات کرتے سمے میں نے اس سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ
फरमाता है कि मैं मौत देता हूँ, और फिर दूसरी आयत में फरमाता है कि फ़रिश्ते भी मौत देते हैं। ये सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42। मौत के वक्त अल्लाह रूहों को कब्ज़ करता है, यानी अल्लाह ताला रूहों को अल्लाह ताला मौत देता है, ठीक है ना। यानी रूह कब्ज़ करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अब ये दूसरी आयत देख लीजिए, ये सूरह सजदा आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब कह दीजिए मौत का फ़रिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ करता है। देखिए पहली आयत जो हमने पेश की उसमें क्या है कि अल्लाह ताला रूहों को कब्ज़ करता है, यानी अल्लाह ताला मौत देता है। यहाँ दूसरी जगह मौत का फ़रिश्ता मौत देता है, ठीक है ना। तो ये ज़ाती और अताई का फ़र्क करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को वो ताकत दी है कि वो रूह कब्ज़ करते हैं, वो मौत देते हैं, समझ गए। तो इसी तरह से ज़ाती और अताई का फ़र्क समझें, और ये जो जाहिल हैं ये जो उसूल बनाते हैं उसी को तोड़ते हैं। तो ऐसे वहाबियों, देवबंदियों, शिया, राफ़िज़ियों, कादियानियों, इन सब जाहिलों से दूर रहें, अपना ईमान बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।